Yes, namaste friends. Am I audible now? Yeah, Yes. thank you. Thank you. Chalo, we will start as usual with the chantings of the Omkar. May I request you to sit erect with your back? Keep your shoulders proper. Slowly inhale. That's great. Gently open your eyes. So let us continue with our lessons on diet and nutrition as per Gheranda Samhita. Last class we had completed up to 28. No, we had completed up to, yes, 31 32 तक हमने कंप्लीट कर लिया. ऑलमोस्ट समीरा एक आखिरी श्लोक बचा था. हाँ राइट. हाँ वही तो वो हाँ तो हमने वो कंप्लीट कर लिया. Just revising it from 29 it will be better so that we are coming back to the topic. 29th श्लोक कहता है लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत. A yogi should eat the food which is easily digestible, agreeable, soft and sticky, which nourishes the elementary substances of the body and which is desirable for the proper growth, which is desirable and proper. Kathinam, duritam, putim ushnam, paryushitam tatha, atishitam cha ati cha ushnam bhakshyam yogi vivarjayet. A yogi should avoid food that is hard, polluted, putrid, producing heat inside the body, stale, extremely cold, and extremely hot. So this is also said to be avoided. And then comes the one which is related to our lifestyle. The first one is pratah snan. The second one upavas adi. Kaya klesh vidhim tatha ekaharam niraharam yamante cha na karayet. Yamante cha na karayet. One should not eat within the 3 hours of what we have eaten. And it is said that one should not be eating once in a day also. He should avoid eating once in a day. Rather, he should take at least 2 meals minimum. Early morning bath should be avoided. Fasting should be avoided. And anything that leads to exertion should be avoided. एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरेत आरंभे प्रथमे कुर्यात शीर राज्य नित्य भोजनम मध्याहे च इव साय आहि च भोजनम द्वयम आचरेत. Following the rules thus laid down, one should practice pranayam as per the dietary rules given. And it is said in the beginning he should take milk and ghee daily
and have the food twice a day, once at noon and once in the evening. तो मध्याह्ने च इव सायंआह्ने, तो ये हमें एक इंडिकेशन है कि हम भले एक प्रकार से ब्रंच ले लें, यानी ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर आप पहले ले लें, और उसके बाद जो है इवनिंग में आप दूसरा मील ले लें. तो ये This way we can go ahead and have the 2 meals of the day. Having told us about everything related to diet, now Gheranda Muni comes to the way we should be sitting, where we should be sitting, and how we should face our face on which direction in order to go ahead and do the practice. कुशासने मृगाजीने व्याघ्रजीने च कंबले. अगर कंबल उन्होंने बिछाने के लिए कहा है, तो कंबल बिछाने से पहले नीचे कुशग्रास होना चाहिए, उसके ऊपर मृग का चर्म और उसके ऊपर व्याघ्र का चर्म. मीन्स द योगी शुड बी सिटिंग ऑन ए थिक सिट मेड अप ऑफ फर्स्ट द कुशग्रास 1 लेयर, उसके ऊपर जो है एंटेलोप स्किन, उसके ऊपर जो है टाइगर स्किन, एंड देन अबाव दैट यू आर स्प्रेडिंग अ ब्लैंकेट. आज के डेट में अगर आप एंटेलोप स्किन और टाइगर स्किन लेने गए तो सबसे पहले जेल की हवा खानी पड़ेगी. उसके बाद में उसके बाद में यू कैन थिंक, सो बेटर स्टिक टू योर मैट, दैट इज द इंडिकेशन. तो दिस इज वन थिंग. एंड देन ही सेज स्थूल आसने समासीनः, means sit in a proper sitting position which makes you to become comfortable. And then it is said कि one should प्रांग मुखे व अपि उदंग मुख. Now see, when we say प्राण मुखो, facing the east, means from the side where the sun rises, face that side. व अपि उदानम मुख is like facing to the side of the north. नाड़ी शुद्धिम समासाद्य प्राणायामम समभ्यसे. Now you can start with your nadi shuddhi pranayam so that you are preparing for the further higher pranayams in a proper manner. Immediately in the next shloka, one thing becomes clear. He says, nadi shuddhim katham kuryan nadis shuddhis astu kridshri. अगर तुमने अपने नाड़ियों को शुद्ध न रखते हुए अगर नाड़ी शुद्धि का अभ्यास किया तो it will become difficult. So Chanda asks the great Gheranda Muni, I want to know how the nadis are purified and what are the ways of purifying the nadis. Kuryan nadi shuddhi astu कीदृशी तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामि तद्वदस्व दयानिधे. O merciful master, tell me all this. See, if you go ahead to the previous shlokas and just drop in to the shlok number 2 of the chapter, वो क्या कहता है? आदौ स्थानम तथा कालम मीता आहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिम ततः पश्चात प्राणायामम च साधयेत्. मतलब जो अल्टीमेट हमको कुंभक करना है, जो प्राणायाम करने हैं, उसके पहले हमको नाड़ी शुद्धि करना है. और नाड़ी शुद्धि करने से पहले क्या आपने ये 3-4 चीजों का पालन किया है? कि आपने सही स्थान देखा जहां पर बैठ सकें आप सही तरीके से,
और अभ्यास कर सके? क्या आपने समय चुन लिया अपने आप के लिए? Have you taken note of the moderation of the food? And then have you purified the nadis? और कहीं ना कहीं अब ये जो श्लोक नंबर हमने 33 पढ़ा, तो it is all about the place and how you should face and where you should be facing. वो क्लैरिटी आ गई। और उसके पहले सारी बातें हमको जो है डाइट के बारे में बताया। वो डाइट के बारे में बताने से पहले सारी बातें जो है हमको सीजन के बारे में बताया जाता कि कौन से ऋतु में आपको शुरुआत करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सीजन कब आता है और कब जो है प्राणायाम जो है इतना ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करना या योग का ही अभ्यास करना जो है आपको थोड़ा सा संभाल कर करना चाहिए। तो वन थिंग विथ ऑल दिस प्री रिक्विजिट्स becomes clear कि of course yoga is a discipline, but to observe this discipline there are very important things that we are supposed to keep in our mind. We just cannot go with blind eyes and start practicing and continue with the practice. एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई मौसम कैसा है, ज्यादा गर्मी हो रही है, ज्यादा पसीना छूट रहा है, ज्यादा एक्सर्शन हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई मत करो, अवॉइड करो। उपवास वगैरह कर रहे हो, शरीर जो है तुम्हारा एक प्रकार के दौर से गुजर रहा है, उस टाइम पे भी अवॉइड करो। प्रातः स्नान उपवास आदि काया क्लेश विधिम। जब हमारे सामने ये शब्द आ जाते हैं तो थोड़ा सा इसका डीपर सेंस अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो काया क्लेश विधिम, क्लेश का मतलब होता है मिजरीज। काया इज द बॉडी, all the kind of pains and miseries that the body is going through, please at that time he is telling us to avoid. अब हमें फोन आ जाता है, सर कल से जो है माइग्रेन का अटैक आया हुआ है, आप बताइए कौन सा प्राणायाम करें। तो मैं बोलता हूं बंकर में चले जाओ। ना बंकर इज कंबल ओढ़ के सो जाओ, एज सिंपल। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे सर कुछ इलाज बताइए ताकि ये कम हो जाए। इलाज यही है कि तुम शांति से आराम करो। तुम्हारा शरीर कह रहा है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम ये कह रहा है कि अभी जो है त्रिदोष का प्रकोप है, शायद वात भड़का हुआ है, उसको अगर शांत देखना चाहते हो तो आराम करो। जैसे ही आप अपने शरीर को आराम वाली स्थिति में लिटा देते हो, द बॉडी इटसेल्फ टेक्स ओवर ए टास्क ऑफ रेगुलराइजिंग ऑल द डिस्टर्ब्ड दोषास। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। हाँ, अगर वो व्याधि में बदलाव आ गया, if it becomes very severe, then of course you have to take the help of the vaidya and have the medicine. But at the same time, one should understand that you are not supposed to go ahead with that practice of any kind of pranayam or anything like that. कभी कभी ऐसे होता है, अब हमसे कह दिया गया कि अगर तुम नाड़ी शुद्धि करोगे तो you will acquire slimness of the body, you will acquire kapal shodhanam, the clarity of the thoughts and all. तो कई बार ऐसे हो जाता है कि जो इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं उनको ऐसे लगता है कि मेंटल क्लैरिटी एंड प्यूरिफिकेशन of the mind or the strengthening of the nervous system can be taken as a remedy for the various issues that we are going through. Not necessarily. कई बार ऐसे होता है, मैंने खुद सुना है, हमारे ग्रुप में से एक ने पूछा, सर जब ये माइग्रेन होता है, जब हमको ये सर दर्द होता है तो हमको क्या करना चाहिए। तो सर भी सामने खड़े हैं और वो कहते हैं कि आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करो। और वो सही भी हो सकता है कि उस समय ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करने से उस बंदे को सुकून महसूस होता है और अच्छा लगता है।
but is it applicable to each and everyone? Now, this is the study which I'm talking about. This is a study on pranayam itself. Everybody's body is not similar to the other person. The way the constituency has been designed is different from different to different person. And what is advised to one person, and if it clicks with that person, it is not true that it will click with everyone. पहले तो हमको ये देख लेना चाहिए कि हम कुछ ना करके अवॉइड करने से आराम करते हैं तो कितना फर्क पड़ता है, और उसके बाद में रेक्यूपरेशन रिहैबिलिटेशन वाला जो पीरियड होता है उसके अंदर जो है योग को आप अपना कर अगर करते हैं तो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग आउट योरसेल्फ। तो ये भी एक प्रकार का प्री रिक्विजिट हो जाता है प्राणायाम के अभ्यास के लिए। एंड देन इन द नेक्स्ट इफ यू सी ही गोज ऑन टू से, अगर तुम्हारे नाड़ियों में मल है तो हाउ यू विल फाइंड दैट द prana is properly flowing through the nadis? Malakulasu nadishu maruto naiva gacchati pranayamam katham siddhaye tattvaඥānam katham bhavet tasmat nadi shuddhim ādau pranayamam tatho abhyaset। अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर इंप्यूरिटीज बहुत हैं, तुम्हारे नाड़ियों में इंप्यूरिटीज बनी हुई हैं, तो किस तरह से प्राण का जो संचार है वो तुम्हारे नाड़ियों से होगा? वायु विल नॉट एंटर थ्रू देम और कोर्स थ्रू देम इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द रिक्वायर्ड चेंजेस। हाउ कैन प्राणायाम बी सक्सेसफुल हियर? हाउ कैन वन नो द ट्रूथ, द रियलिटी? सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूरिफाई द नाडीज एंड देन बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अब यहां से नाड़ी शुद्धि का कथन शुरू होता है और वो हमको बताते हैं दो प्रकार की नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि द्विधा प्रोक्ता समनु निर्मणुस्तथा बीजेन समनु कुर्यात् निर्मणु धौति कर्मणा। नाड़ी शुद्धि द्विधा दो प्रकार की है, समणु एंड निर्मणु। बीजेन समणु जो बीज मंत्र के साथ में प्रैक्टिस किया जाता है उसको हम कहते हैं समनु नाड़ी शुद्धि। और निर्मणु नाड़ी शुद्धि क्या है? वेयर यू आर प्यूरिफाइंग योर नाड़ीज विद द हेल्प ऑफ षटकर्म। यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है धौति कर्मणा। इट इज नॉट ओनली धौति कर्म बट इट हैज बीन रिटन धौतिक, मतलब धौति कर्म के जैसे अन्य जो षटकर्म हमने बताए हुए हैं उसका अभ्यास आपको करना है। तो मेनी अ टाइम्स इट इज observed that only dhauti karma is to be done before the practice of pranayama. It comes to the conclusion कि हमारे घेरण संहिता में तो ऐसे लिखा हुआ है, तो घेरण संहिता में सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे नहीं। इट हैज बीन रिटन कि धौति कर्म के साथ में और भी जो कर्म है, नेति है, बस्ती है, त्राटक नौली कपाल भाती है, ये सबका ज्ञान आपको होना चाहिए, सबका अभ्यास आपका होते रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये षटकर्म को तो हमने 21 प्रकार के शुद्धि क्रियाओं के अंदर पूरा कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कभी हम फर्स्ट चैप्टर को रिमेंबर करें तो वी हैव लर्न दैट इवन धौति इज ऑफ 4 कैटेगरीज। हमने सबसे पहला शुरुआत की आंतर धौति, देन दंत धौति, तीसरा हृद धौति एंड चौथा मूल शोधन। अगर आंतर धौति की बात की जाए तो उसमें 4 हैं, वातसार, वारीसार, वहनीसार, बहिष्कृतम। दंत धौति की बात की जाए तो उसमें 5 हैं, नाम 4 हैं, जैसे दंत मूल धौति, जिह्वा मूल धौति, कर्णरंध्र धौति। लेकिन जब कर्णरंध्र धौति की बात आती है तो राइट ईयर और लेफ्ट ईयर ये दोनों मिला के कहा गया। और फिर चौथा जो है यानी 5वां जो है कपाल रंध्र धौति, यानी द पैसेज टू द स्कल शुड बी रेगुलरली क्लिंस्ड, दैट इज द रूफ टॉप ऑफ योर माउथ ओरल कैविटी नियर द सॉफ्ट पैलेट।
अब हृद धोती, वस्त्र, वमन, दंड, ये 3 बताए गए हैं। और लास्ट में मूल शोधन, यानी making sure that the excretion is taking place in a proper manner very regularly. If this purification is happening, dhauti karma is being done and you are preparing for the pranayam. बस्ती, 2 प्रकार की बस्ती, जल बस्ती यानी शुष्क बस्ती, पानी में खड़े रहकर करना, उसको हम जल बस्ती कहते हैं। धरती पर यानी जमीन पर आकर शुष्क बस्ती करना, हमको टेक्निक बता दी गई कैसे करना है। उसके बाद में नेति, नेति एक ही प्रकार की नेति है, सूत्र नेति। देयर इज नो जल नेति, दुग्ध नेति और घृत नेति, ओनली सूत्र नेति हैज बीन एक्सप्लेन। हाँ, ये जो है षटकर्म संग्रह के अंदर अलग अलग प्रकार के नेति क्रियाओं का उल्लेख है, जिसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमको ऐसे लगता है कि हमको वो भी करना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। अब आ जाती है बात नेति के बाद में त्राटक की, एक ही प्रकार का त्राटक जो आपको अपने आंखों को बिना पलकों को झपकाए एक टक उस सूक्ष्म विषय को देखते हुए आंखों से आश्रु संपात पर्यंतम, आंखों से पानी निकलना चाहिए। दैट इज वेयर द क्लिंसिंग ऑफ द आईज हैव टेकन प्लेस। सो दैट वाज योर त्राटक। देन कम्स द कपालभाति एंड एट लास्ट नौली हैज बीन एक्सप्लेन। तो नौली abdominal movement, rotation of the abdominal recti muscles with that negative pressure developed in उडियान बंद, आपको वो करते प्रेशर मैनिपुलेशन करके आप जो है मसल्स का मूवमेंट करते हैं। सो दैट इज नौली क्रिया विच हेल्प्स अगेन वात पित्त श्लेष्म हरम। तो ये आपके तीनों दोषों को जो है बैलेंस में लेकर आता है। और लास्ट में हमने देखा कपालभाति। कपालभाति हमें 3 प्रकार की बताई गई, वातक्रम, व्यूतक्रम, शीतक्रम। वातक्रम कपालभाति, दैट टू ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल। आपने एक तरफ से इनहेल करके दूसरी तरफ से एक्सपेल किया, देन यू बिलीव ऑन दैट पैसिव इनहेलेशन एंड गो ऑन एक्सपेलिंग थ्रू द ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल। ये वातक्रम कपालभाति बताई। फिर उसके बाद में व्युतक्रम, नाक से पानी लेकर मुंह से निकालना, और शीतक्रम, मुंह से पानी लेकर नाक से निकालना। और एक बात, नाक से पानी लेकर मुंह से निकालना या मुंह से पानी लेकर नाक से निकालना, ऐसे पानी लेकर निकालना, ये हमको शीतक्रम में क्लियर होता है, व्युतक्रम में भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि वहां पर पानी या जल का वर्णन ही नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं कि इसको हवा से भी कर सकते हैं हम। भाई हवा से करना होता तो फिर वो हमको वातक्रम में ही बोल देते, यहां पर अलग से क्यों बताते हो। सो दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन कपालभाति। और इस तरह से अगर उन्होंने इतने प्रकार की शुद्धि क्रियाएं हमको बताई हुई हैं, आपको क्या सूट होता है। हम में से कई लोग हैं जिनको वमन सूट नहीं होगा, दंड सूट नहीं होगा, किसी को बस्ती सूट नहीं होगा। भाई ये 6 प्रिंसिपल क्रियाओं में जो आपको सूट होता है, जो आपको लगता है कि मैं आसानी से करके जो है इसके आधार पर मैं अपनी त्रिदोष का समन्वय स्थिति जो है मैं ला सकता हूं, यू आर फर्स्ट सपोज टू कम टू दैट एंड देन गो अहेड एंड डू द प्राणायाम प्रैक्टिस। तो यहां पर घेरंड मुनि ने हमारे सामने समनु और निर्मणु रख दिया। अब वो समनु नाड़ी शुद्धि में भी उन्होंने क्या कहा कि बीज मंत्र के साथ, अब वो बीज मंत्र के साथ में समनु नाड़ी शुद्धि कैसे की जाती है वो उन्होंने बताया हुआ। हाँ, अगर विदाउट मंत्र आप करेंगे, क्योंकि बीज मंत्र के साथ करने वाले प्राणायाम को हम कहते हैं सगर्भ, और विदाउट मंत्र के साथ में हम प्राणायाम जब करते हैं तो उसको कहा जाता है निगर्भ। तो अब वो फंडामेंटल जो है हमारे सामने आ जाता है। अब देखो इन द सूत्र नंबर श्लोक नंबर 38 he goes ahead and makes it very clear that a person should sit in padmasan, उपविश्य आसने योगी पद्मासनम समाचरेत, गुरुवादी अन्य आसनम कुर्याद्यथैव गुरु भाषितम नाड़ी शुद्धिम प्रकुर्वित प्राणायाम विशुद्धये।
So here, Upavishya asane yogi, sitting on a prescribed seat, a yogi should assume Padmasana. Then it is said, गुरुव आदि अन्य आसनम, जो स्थिति में आप बैठे हुए हो, हर एक शरीर के भाग में जो जो फोर्सेस आपको स्थिर रखने के लिए एक्टिव हैं, ऐसे इष्ट देवताओं को आप याद कर लो. यस, थैंक यू फॉर मेकिंग मी very stable in this sitting position. That means you are inviting the deities to the various parts of your body. And from where you got this knowledge? As advised by the guru. अब एक गुरु क्या कहता है? आसन में बैठो, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, कंधों को बराबर रखो, चिन को पैरेलल रखो, आंखों की एक पर्टिकुलर दृष्टि बना लो या आंखें बंद कर लो, हाथों को एक पर्टिकुलर मुद्रा में रखो या घुटनों पर रख दो. जो ये स्थिति है, कहीं ना कहीं आपके प्राणायाम के लिए एसेंशियल बातें हैं. क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी बनी नहीं रहेगी, तो आपके रिबकेज जो है वो बराबर पोजीशन में नहीं रहेंगे. जहां आपके रिबकेज बराबर पोजीशन में नहीं रहेंगे, तो जो चेस्ट का एक्सपांशन और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, वो बराबर से नहीं होगा. अगर वो बराबर से नहीं होगा, तो डायफ्राम का मूवमेंट बराबर नहीं होगा. अगर डायफ्राम का मूवमेंट बराबर नहीं होता है, तो जाहिर बात है, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी पूरक और रेचक की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे. तो वो कहते हैं कि उस स्पाइनल कॉलम को वो इंपॉर्टेंस दो, मानो जैसे उस स्पाइनल कॉलम का जो इष्ट देवता है, उसको आपने लाकर वहां पर स्थित कर दिया. उसी तरह से आपके बैठक की स्थिति. अब कई लोग हैं पद्मासन में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, अर्ध पद्मासन में भी नहीं होंगे. यू कैन सिट ऑन द चेयर एंड प्रैक्टिस. कई बार हमारा ईगो आ जाता है, जब दूसरे लोग नीचे बैठ के करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं. अरे बाबा, तुमको घुटने में प्रॉब्लम है, लोअर बैक में इश्यू है, टेल बोन में फ्रैक्चर है, काहे के लिए नीचे बैठना है. नहीं, हम नीचे ही बैठेंगे. फिर साबिर भाई भी बोलते हैं, मरो, जैसा करना है करो, जब तकलीफ होगी तो उठकर बैठेंगे. और फिर बाद में हमारे बिना बोले, हाँ सर आपने तो पहले बताया था, इसलिए अब हम चेयर पर बैठ रहे हैं. फिर एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा, सर चेयर पर बैठ के करने से वही बेनिफिट मिलेगा क्या जो हम नीचे बैठकर अर्ध पद्मासन पद्मासन में करते हैं. तो फिर मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं. वही बेनिफिट कैसे मिलेगा? क्योंकि जो फोर्सेस को हमको एक्टिवेट करना था, शायद वो फोर्सेस थोड़े से इनएक्टिव रह गए. तो बोले फिर तो चेयर पे बैठ के करने का फायदा क्या? भाई जो फोर्स एक्टिव है उसका साथ ले लो ना, जो सबके सब नहीं है उसको छोड़ दो. सभी होने चाहिए एक्टिव, ऐसा किसने बोला? अब तुम्हारी एबिलिटी के अंदर अगर एक ही स्पाइनल कॉलम का जो फोर्स है, उसी को एक्टिव रहना तुम्हारे नसीब में, तो जस्ट बी विथ इट. जितना मिल रहा है उतना ले लो, ऐसा है. तो जहां ये सारी बातें क्लियर हो जाती है, प्राणायाम का अभ्यास जो है हमारे लिए आसान हो जाता है. नहीं तो कई बार जिद के मारे आप प्राणायाम नहीं करते हैं, आप अपनी ईगो को बूस्ट करने वाला कार्य करते हैं. वो नहीं होना चाहिए. तो said and done, as this sitting position is understood, he says, then the practitioner should go ahead and begin with the purification of the nadis, so that he can go ahead and perform the other pranayams without doing any kind of fault. Clear? अब देखो ये 39 से जो है ना हमको टेक्निक बताई जा रही है. और अगर बीज मंत्र का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, when we are taking the support of the बीज मंत्र and doing the नाड़ी शुद्धि, the best thing which comes to us is a proper concentration. नहीं तो क्या होता है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग तो शुरुआत में जब सीखते हैं तो अटेंटिव रहते हैं. अब एक इंसान को देखो जिसने अभी अभी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन की, तो जब वो हाथ पे स्टेयरिंग पकड़ता है
और गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो कितना अलर्ट रहता है, कितना अवेक रहता है वहां पर। हाँ, उसके हाथ में भी थोड़ा सा स्टिफनेस दिखाई देता है, स्टेयरिंग को भी घट पकड़ता है, उसको ऐसे लगता है कि स्टेयरिंग को ढीला छोड़ दिया तो कहीं गाड़ी लेफ्ट से राइट चली जाएगी। ये सारा टेंशन उसका बना हुआ रहता है। और फिर वो जो बाजू में टीचर बैठा हुआ रहता है उसको बोलता है ईज डाउन, हाथों की पकड़ भी थोड़ी सी ढीली रखो, आपको ऐसे नहीं पकड़ना है कि जैसे आप कोई फायरिंग करने वाले हो। You just try to have that steering in your hand in such a way that you are going to manipulate it gently and that is where you are going ahead. तो शुरुआत में वो जितना अलर्ट रहकर प्रैक्टिस करते हुए गाड़ी चलाना सीख लेता है, कार चलाना सीख लेता है, लेकिन एक बार वो कार चलाते हुए मास्टरी हासिल कर लेता है तो फिर देखो, गाना सुनते सुनते गाड़ी चलाता है, बातें करते करते गाड़ी चलाता है, वड़ा पाव खाते खाते गाड़ी चलाता है। ही मे बी यू नो टॉकिंग ऑन द फोन एंड ड्राइविंग, तो अभी मल्टीटास्कर हो गया। तो कभी-कभी क्या होता है, हम नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम करते-करते हमारा शरीर भले एक ही टास्क में लगा हुआ हो, लेकिन मेंटली हम मल्टीटास्किंग करते हैं। हाँ, साबिर भाई अभी प्राणायाम ले रहे हैं, नाड़ी शुद्धि ले रहे हैं, तो इनका तो अभी ये 15 मिनट तक नाड़ी शुद्धि चलेगा। तब तक मैं ये सोच लेती हूँ कि आज के दोपहर के लिए मुझे कौन-सी सब्जी बनानी है, मार्केट जाकर क्या लाना है, हैं? कैसे बनाना है, क्या बनाऊँ, कल पतिदेव ने क्या बोला, या फिर the Patidev himself who is practicing, he starts thinking about his office work. अब इसमें क्या होता है, अंगुली जो है हमारे नाक के ऊपर लेफ्ट से राइट बराबर घूम रही है, बट एट द सेम टाइम माइंड इज समवेयर एल्स। और इसीलिए हम कहते हैं ना, मननाथ त्रायते इति मंत्र। इफ यू टेक द सपोर्ट ऑफ द मंत्र, योर माइंड गेट्स प्रोटेक्टेड, एंड दैट इज वेयर घेरंड मुनि हैज ब्रॉट इन दिस सपोर्ट ऑफ समनु प्राणायाम, where he takes the support of बीज मंत्र and says ये सगर्भ प्राणायाम करो। He goes ahead and says वायु बीजम ततो ध्यात्वा धूम्रवर्णम सतेजसम चंद्रेण पूरयेद वायु बीजम षोडशकैः सुधीः। और फिर अगला श्लोक, चतुस्तया मात्रया च कुंभके नैव धारयेत द्वात्रिंशन मात्रया वायुम सूर्य नाड़या च रेचयेत। वायु बीजम, कंटेम्पलेटिंग ऑन द वायु बीज। अब वायु बीज इज समथिंग रिलेटेड टू यम। वन शुड बी contemplating on that beej mantra yam, which is also connected with that smoky color. It is lustrous, and let him inhale by the left nostril and repeat continuously the bija 16 times. यानी inhalation कितना कहा आपको? 16. Retaining for a period of 64 counts of the same bija mantra. Let him exhale through the right nostril, repeating the same bija mantra for 32 counts. तो अब लेफ्ट से इनहेल करना, कुंभक करना, अंदर सांसों को रोककर, राइट से एक्सहेल कर देना, 16, 64, 32। ये उन्होंने हमको बता दिया कि दिस शुड बी द स्टेट। Now today we are in the position of doing only 1/4 of that. That means inhalation is 4, retention is 16, and exhalation is 8. Nothing wrong with that. It is a good beginning. आगे क्या बोलते हैं? उत्थाप्य अग्निम नाभि मूलात ध्यायेत तेजो अवनीयुतम वहनी बीजम षोडशेन सूर्य नाड्या च पूरयेत। और वही हमको बोल रहे हैं कि अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करो, उत्थाप्य अग्नि मतलब रेजिंग द फायर इन द बॉडी, ध्यायेत तेजो अवनीयुतम, फ्रॉम द रूट ऑफ द नेवल you go ahead and contemplate on the light that is associated with the earth element, and then vahani beej shod
शेन, वहनी बीजम षोडशेन 16 times inhaling through the सूर्य नाड़ी, पूरक करो। फिर आगे बोलते हैं चतुस्तया मात्रया च कुंभके नैव धारयेत, 4 times of that 16 hold the breath in, then द्वात्रिंशन मात्रया 32 times वायु नाड़ी शशि नाड़िया च रेच, शशि नाड़ी यानी आपकी चंद्र नाड़ी, वहां से रेचक करो। सो रेजिंग द फायर फ्रॉम द रूट ऑफ द नेवल, contemplate on the light associated with the earth element, then repeating the agni bijam। अब अग्नि is related to navel, so navel यानी मणिपुर चक्र, वहां का जो बीज मंत्र है वो है रम, यानी रम का उच्चारण करते हुए mentally 16 times you are inhaling through the right nostril, then retaining it and repetition 64 times, then exhaling through the left, that is Chandra Nadi, 32 times is the repetition। इस तरह से आपका एक साइकिल जो है कंप्लीट हुआ। फिर आगे क्या बोलते हैं, नासाग। हाँ जी, एक चीज यहाँ पे भी रेशियो हाँ 1:4:2 है। हाँ, तो और हठ प्रवृत्तिका में भी 1:4:2 था। हठ प्रदीपिका में मेंशन नहीं किया है, हठ प्रदीपिका में रेशियो मेंशन नहीं है, लेकिन इट इज वेरी क्लियर व्हेन हठ प्रदीपिका सेज कि गुरु के मार्गदर्शन में आपको ये सीखना है, और उसमें हमें राउंड्स और साइकिल्स बताए गए, 80 साइकिल्स इन द मॉर्निंग, 80 साइकिल्स इन द आफ्टरनून, 80 साइकिल्स इन द इवनिंग एंड 80 साइकिल्स इन द नाइट। लेकिन रेशियो की बात 1:4:2 से रिलेटेड जो है कोई बात नहीं बताई गई। हाँ, उसमें एक बात बताई गई है, कनीयसी मध्यम और उत्तम। जब आप कनीयसी यानी लोअर लेवल का प्राणायाम करते हैं तो कहते हैं कि स्वेद मतलब शरीर से पसीना छूटेगा, मध्यम कंपो भवति, कंपन महसूस होंगे, उत्तम योगी स्थानत्वम आपनोति, यानी यू विल स्टार्ट रिलेटिंग योरसेल्फ टू द हायर स्टेट, यू विल स्टार्ट एलिवेटिंग। अब वही चीज यहां पर बताई गई है, लेकिन यहां पर हर एक लेवल के साथ में इसको जोड़ दिया गया कि भाई कनीयसी लेवल इज 12, 48 एंड 24, मध्यम लेवल इज 16, 64 एंड 32, and उत्तम level is 20, 80 and 40। तो हम जब हठ प्रदीपिका भी सिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये कनीयसी मध्यम और जो उत्तम है इसको इस तरह से समझा करो। वहां पर हम घेरंड संहिता का आधार लेकर सामने वाले को रिलेट कर देते हैं, लेकिन हठ प्रदीपिका में इसका मेंशन बिल्कुल नहीं है कि हमारा रेशियो क्या होना चाहिए। दूसरी चीज हाँ, कि हमने शुरुआत की है कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन वायु बीज, हाँ, फिर अग्नि बीज, फिर हाँ। पृथ्वी बीज। तो ये इन प्रैक्टिस कैसे होता है? अभी आगे भी उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया हुआ है। he is very clear that mentally you repeat this mantra। जैसे कि अब समझो कि मुझे 16 टाइम्स रम का उच्चारण करना है, तो मैं इनहेल कर रहा हूं राइट नॉस्ट्रिल से, समझो कि ये सेकंड पार्ट चालू है, एंड व्हाइल इनहेलिंग थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल मेंटली रम 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 रम, इनहेलेशन इज हैपनिंग एंड मेंटली आई एम चैंटिंग दैट बीज मंत्र। लेकिन ये तो वोकली आप मेरे से सुन रहे हैं, ये मेंटली होना चाहिए। एंड यू विल फाइंड that as you are making it 16, you are done, then you are retaining it inside, मतलब ब्रेथ को आपने होल्ड कर दिया, and 64 times the same rum has been repeated। और रेचक from the left nostril is taking place 32 times। 32 times means what? Rechaka is continuously flowing, but that time duration is the 32 repetitions of that Bij mantra ram। So that way we are measuring। और उन्होंने शुरुआत हमको यम से करने के लिए कही,
कि लेफ्ट से इनहेल करते हुए यम 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 16 टाइम्स, रिटेनिंग इट इनसाइड यम 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 64 टाइम्स, एक्सहेलिंग थ्रू द राइट 32 टाइम्स। और यही जो है उन्होंने हमको दोनों तरफ से अलग अलग बीज का बताया। आगे आप देखेंगे ना, तो वी कैन टेक द सपोर्ट ऑफ अदर मंत्रास ऑल्सो, अदर बीज अक्षर ऑल्सो। अब वो आएगा आगे, वो हमको और ऑप्शंस देते हैं, और वो इनर काउंटिंग का एक तरीका भी बताते हैं। वो काउंटिंग का तरीका वो क्या बताते हैं, ये आपकी हथेली है और ये आपका घुटना है, आपने घुटने पर हथेली रखा, तो एक ऐसे गोल घुमाया, दैट इज 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। तो मैंने अपने सर को पूछा, सर वो घुमाने की क्या जरूरत है, मैं ऐसी गिन सकता हूं ना 1 2 3 4 5। सर ने बोला हाँ, तो फिर वो घुमाना क्यों? तो बोले कि दैट इज वेयर यू आर गेनिंग अ स्किल of either chanting a mantra or the rotation of the hand on the knee, and at the same time connecting to that length of the breath, making it prolonged, inhaling, retaining and exhaling. और फिर सर ने क्या कहा मालूम है? तो आपको क्या लगता है प्राणायाम इतना आसान है कि तुम बैठ गए, एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से छोड़ा, दूसरी तरफ से लिया, पहले तरफ से छोड़ दिया, इसको प्राणायाम बोलते हैं? ये तो कोई भी करता है। इट इज नॉट प्राणायाम। बट व्हेन इट कम्स टू प्राणायाम, the level of concentration has to be very deep, very much focused, and with all the kinds of involvement you are going ahead and doing it. अगर ये इतना इन्वॉल्वमेंट वाला प्राणायाम नहीं होता, तो इसकी पूर्व तैयारी उतनी करने की क्या जरूरत है? एज सिंपल। भाई जो चीज इतनी कठिन है, या फिर कठिन बोलने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे कहूं कि इतनी महत्वपूर्ण है, उसको समझकर करने के लिए आपका इतना अच्छा प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। तो किसी ने पूछा सर हमसे कब होगा? सर ने एक ही बात बोली, जिस दिन नाड़ी शुद्धि तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब एक बात क्लियर थी कि तुम्हारी नाड़ी शुद्ध नहीं है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो डाउट है। जहां संशय आ गया, तो कहीं ना कहीं ऐसे समझो कि द इम्प्यूरिटीज आर स्टिल देयर इन योर नाडीज। और जहां संशय निकल जाता है, एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट इन दिस वे। सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट विद दैट एंड गो ऑन डूइंग इट। अभी अच्छा एक और चीज कि ये सीक्वेंशियली करना होता है, पहले वायु बीज, फिर अग्नि बीज, फिर पृथ्वी बीज, या एक सेशन में एक करने से फिर आगे अगले सेशन में अगले पे मंत्र पे फोकस करना? सी, उन्होंने यहाँ पे आधा साइकिल वायु बीज कहा और बाकी का आधा साइकिल उन्होंने अग्नि बीज कहा। नाउ ही इज वेरी क्लियर इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस के मैंने तो वायु बीज और अग्नि बीज पहले बताया था, आप जो है और भी कोई बीज का सहारा लेकर कर सकते हो, और ये आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है वो आप ले लो। उन्होंने तो ये भी कहा, ओंकार का अ, ओ और म, यानी श्वास लेते समय आकार, अंदर श्वास को रोकते समय उकार, और एक्सहेल करते समय मकार का उच्चारण। और यही आ, उ और म दूसरी तरफ से भी ऐसे भी बताया उन्होंने। और एक बात बोलते हैं कि माइंड को पूरी तरह से ओम पर फोकस्ड रखो और प्रैक्टिस करते रहो। सो सी, द अंडरस्टैंडिंग इज इट इज नॉट टू बिकम वेरी particular about a particular beej, akshara or mantra, but what makes you to become more focused, what makes you to become more connected with that process, that we should go ahead and continue. Okay, या अब देखो, जब उन्होंने कहा कि इस तरह से करना चाहिए, द 43rd, now he is coming to us and telling very clearly कि as you have done with this 2 बीज mantra,
In the 43rd one, he says, Nasagre शशधुक बिंबम ध्यात्वा ज्योत्स्नास, क्या है ये, ज्योत्स्ना समन्वितम ठम बीजम षोडशे नैव ईडया पूरयेन मारुत। अब वो ठम का उच्चारण करने के लिए कह रहे हैं। षोडशे नैव 16 टाइम्स, ईडया यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पूरयेन मारुत इनहेलिंग थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पूरक। चतुष्टम चतुः षष्टया मात्रया च वम बीजनेव धारयेत। अब आपको सांस को अंदर रोकने के लिए कहा और बीज अक्षर क्या है, वम। तो इनहेल करते समय ठम था लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, अब अंदर रोकने की बारी आ गई तो बीज मंत्र वम हो गया। फिर आगे देखो, अमृतम प्लवितम ध्यात्वा नाड़ी धौतिम विभावयेत द्वात्रिंशेन लकारेण, लकार यानी लम, दृढ़म भाव्य विरेचयेत। Virechayat, it will lead to purification. So contemplating on the luminous orb, Shashadrik bimbam of the moon at the tip of the nose, inhale through the left nostril, repeating the thumb bija 16 times. Retain the air for a period required to repeat Vam bija 64 times. Imagining that nectar is oozing and the nadis are being purified, unwaveringly contemplating exhale, repeating the lakar, that is lam, 32 times. Evam vidham nadi shuddhim krutva nadi vishodayet drudo bhutvasanam krutva pranayamam samachare. So purifying the nadis in this way, one should assume asana and practice pranayama with firm determination. Now when he says इस तरह से नाड़ियों की शुद्धि होने के बाद आसन का धारण, आसन को यस सर, कमिंग टू यू, आसन को धारण करते हुए प्राणायाम डिटर्मिनेशन के साथ में करें, तो यहां पर कौन से प्राणायाम का उल्लेख हो रहा है, अष्टकुंभक। फ्रॉम द नेक्स्ट he goes ahead in the 46th shloka, if you see, he is explaining the names of the 8 kumbhaka, और वो 8 कुंभक में पहला सहित है। अगर आप वो सहित को भी देखेंगे ना, वो भी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल पैटर्न है, और वो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल पैटर्न के अंदर वो हमको क्लियरली समझाते हैं कि सगर्भ यानी बीज मंत्र के साथ और निगर्भ विदाउट बीज मंत्र। ये सासु तो सर बोलिए। ये वायु बीजम, हाँ, वायु बीजम is the अक्षर you said here. हाँ, वायु बीजम तत्व ध्यात्वा धूम्रवर्णम सतेजसम चंद्रेण पूरयेद वायुम बीजम षोडशकैः शुद्धिः। तो वायु बीज का अक्षर वो ना ना है क्या? उसका यह है नहीं, या वो है? नहीं, वह नहीं है, यह है। और तो वो वायु बीज कहां पर दिया नहीं है इसमें? हाँ, उसमें दिया नहीं है, और वो अगर उसमें दिया नहीं है तो ये टीचर का पार्ट प्ले होता है कि वो अपने स्टूडेंट को समझाए कि वायु बीज इज यम। तो वो वायु बीज यम कैसे, वो मैं भी आपको बता देता हूं। सी, एट द मूलाधार रीजन द बीज इज लम, एट द स्वाधिष्ठान चक्र द बीज इज वम, at the Manipura it is ram, and when it comes to heart it is yam। और वायु जो मतलब प्राण का जो सेंटर है, वायु का जो सेंटर है वो है आपका चेस्ट रीजन। तो वो चेस्ट रीजन से रिलेटेड कौन सा चक्र आएगा, वो आएगा अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र का बीज अक्षर क्या है, यम। इस तरह से हमको समझकर जो है, अब यहां पर विशुद्धि चक्र तो उसका आ जाता है
हम, यहां पर आज्ञा चक्र उसका आ जाता है शम, और सहस्त्रार ओम। तो इस तरह से हर एक एनर्जी वॉर्टेक्स और द सेंटर का एक बीज अक्षर हमें पता है। अच्छा, एक बात और, ये बीज अक्षर लगभग सब टेक्स्ट में एक जैसे हैं, लेकिन एक आधा टेक्स्ट तुमको ऐसा मिलेगा जिसमें इसमें भी गड़बड़ है। तो इफ यू सी द अक्षर as per Siddha Siddhanta Paddhati, there is little difference. If you see the connection of the elements in Shiva Samhita, that is different. जबकि मूलाधार रीजन जो है वो अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन अगर आप शिव संहिता में देखेंगे तो उन्होंने ये हार्ट को जो है ना, उन्होंने अर्थ एलिमेंट के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हमको मिलते हैं। अब कैसा है, हम यहां पर 3 टीचर्स हैं, एक आशुतोष सर हैं, एक आशा मैडम हैं और एक सुनील भाई हैं। ये तीनों टीचर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये तीनों टीचरों ने अपने अपने हिसाब से सिखाया। यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि भाई तुमने कोई ऐसा सहारा लिया या नहीं जिसके बदौलत तुम्हारा माइंड फोकस्ड रहकर आप प्राणायाम के अंदर या नाड़ी शुद्धि में अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो। आप बोलेंगे हाँ लिया, लेकिन अगर तीनों को पूछते हैं कौन सा सहारा लिया जरा बताइए, तो सुनील भाई कहेंगे हमने लेफ्ट से जब इनहेल किया तब हमने ठम का उच्चारण किया मन ही मन, और आशा मैडम बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो यम का उच्चारण किया। फिर आशुतोष सर बोलेंगे मैं तो आ ओ म वाला किया। अब आप क्या करते हैं, दैट इज डिफरेंट, बट द इम्पैक्ट एंड द इफेक्ट इज गोइंग टू बी द सेम। दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो अभी क्या होता है, जो नया स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो पढ़ने के बाद में यही समझ लेता है अरे वहां पर तो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, गड़बड़ है ये तो। अब किसको सही समझे और किसको गलत समझे, यहाँ पर सही गलत वाली बात नहीं है। यहां पर बात यह है कि ये ग्रंथ कौन से प्रांत का है, ये ग्रंथ को किसने लिखा है, कौन से माहौल में लिखा है, और उस समय उस माहौल का उस सिचुएशन में जो जानकारी थी वो कैसे बताई गई है, और जो दूसरा ग्रंथ है उसकी जानकारी जो बताई गई है वो कैसे है। तो वी विल फाइंड द डिफरेंट थिंग्स। और ये एक्चुअली वी आर नॉलेज वाइज सो रिच कि हमारे शास्त्र और पुराण के जमाने से जो है, हमारे उपनिषद ले लो, भगवत गीता ले लो, ये सब का जो है ना लिखे जाने का एक तरीका है कि भाई टाइटल कैसे होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो टॉपिक जो है वो टॉपिक को कैसे कंसर्न करके लिखना चाहिए। अगर आप जाएंगे देखेंगे तो शायद आशुतोष सर ने पढ़ा होगा, संस्कृत के अंदर ये बताया जाता है कि जब आप प्रोस लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, तो उसके कंडीशंस क्या क्या, फिर उसका जो बीच वाला भाग जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, और कंटेंट के बाद में जो है कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, और कंक्लूजन के लास्ट में जो है नतीजा यानी कंक्लूजन का जो आखिरी पॉइंट है वो कैसे दर्शाया जाता है। तो हर एक टेक्स्ट का जो है ना ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है शुरू से लेकर लास्ट तक, और इस तरह से एक टेक्स्ट लिखा जाता है। और जाहिर बात है हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने तरीके से इंट्रोडक्शन करता है, अपने तरीके से मूल रूप को सामने रखता है, टॉपिक को सामने रखता है, थीम को सामने रखता है, और उसके एक्सप्लेनेशन में लग जाता है, और एक्सप्लेनेशन बताते हुए कंक्लूजन में भी आता है। तो ये 4-5 चीजें जो होती हैं वो हमको ध्यान रखनी होती है। और ये हमारे संस्कृत में क्या नाम है उसका मैं भूल गया, एक एक तो युक्ति बोलते हैं और दूसरा अब वो, या मैं बीच में आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था उसकी बातें, अच्छा टर्म है उसका, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग दैट नाउ, सॉरी। श्रुति एंड युक्ति, नहीं वो तो है, बट उसके अलावा और एक टर्म है, नाउ आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, लेट मी रिकलेक्ट एंड आई विल, तंत्र युक्ति, तंत्र युक्ति इज द शब्द। तो ये हर एक टेक्स्ट की होती है, और तंत्र युक्ति के अंदर जो है ना ये बात क्लियर हो जाती है हमारे सामने कि हर एक श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो वो लेखक ने या वो ऑथर ने किस बात को ध्यान में रखकर इंट्रोडक्शन लिखा,
किस बात को ध्यान में रखकर थीम को सामने रखा, वो ध्यान में रखकर हमको एक श्लोक के हर एक शब्द के पीछे वाला जो अर्थ है ना वो समझना होता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो ये आपको दूसरे टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। आप और कहीं चले जाइए, मैं अपनी खुद की कुरान शरीफ में पढ़ता हूं ना, उसमें एक एक टॉपिक जो है ना दूसरे टॉपिक से बिल्कुल मेल झोल नहीं खाते। अगर समझो अब एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो अगर कभी पैर के बारे में कहा जा रहा है, समझो कि हम एक एग्जांपल दे रहा हूं, पैर के बारे में कहा जा रहा है, तो पैर के बारे में कहते हुए फिर आप हिप्स या फिर पेल्विस रीजन की तरफ आएंगे ना, ऐसा नहीं है। दूसरा चैप्टर जो है सीधा आपके नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। फिर तीसरा चैप्टर जो है कहीं जाके आपके डाइजेस्टिव के बारे में बात कर रहा है। चौथा चैप्टर जो है आपके जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। पांचवा चैप्टर जो है आपके इंद्रिय के बारे में। तो आप बोलेंगे यार यार एक सीरियल से आओ ना, आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ बातें हैं। तो हर एक टेक्स्ट को पढ़ने का, उसको समझने का एक जो अंडरस्टैंडिंग होता है, उसी को हम तंत्र युक्ति कहते हैं, जो हमारे इंडियन लिटरेचर में बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है। एंड दैट इज द ब्यूटी दैट आवर इंडियन टेक्स्ट आर वेरी रिच इन एक्सप्रेसिंग द नॉलेज। और ये बातें जो है पर्शियन वर्ल्ड को दारा शिको ने अपने लिटरेचर में बहुत अच्छी तरह से समझाया। दारा शिको वॉज द फर्स्ट पर्सन who translated our Upanishads, even Bhagavad Gita and the other text in the Persian language so that the other people understand it and go through it. Even the Yoga Sutra has been translated by Al-Biruni in the Persian language. So see, and the Persians later on accepted कि इंडियन लिटरेचर जो बताया जाता है उनका एक अपना तरीका होता है, एंड वी शुड टेक लेसन्स फ्रॉम दिस इंडियन लिटरेचर सो दैट वी आल्सो प्लेस द मैटर और द टॉपिक और द इंटेंशन इन अ वेरी रेगुलराइज्ड मैनर। और ये हमारे हर टेक्स्ट में मिलेगा। कोई भी ग्रंथ आप ले लो, उसके अंदर आपको ये बात समझ में आएगी और उसके पीछे रीजंस आपको समझ में। तो कैसा है, हमको पहले ये जानना चाहिए कि हाउ वी आर लिंकिंग द फैक्ट्स एंड कनेक्टिंग एंड गोइंग अहेड। तो जैसे अभी आशुतोष सर ने पूछा कि ये यम, ये वायु बीज तो वह होना चाहिए, तो उन्होंने अपना ऐसा अंडरस्टैंडिंग लगाया कि इस तरह से वह वायु का तो वह होना चाहिए, ऐसे उन्होंने अंदाज लगा के कह दिया। बट एट द सेम टाइम हमें पहले ही एक गुरु को जो है, एक टीचर को जो है ये मालूमात होती है, और वो जब अपने स्टूडेंट को, योग के स्टूडेंट को जब सिखाना शुरू करता है, तो वो बताता है कि वायु का बीज क्या है, अग्नि का बीज क्या है। ये सारे बीज बताते हुए जो है उसको कनेक्ट करके फिर आगे के अभ्यास को उसको कन्वर्ट कर देता है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। या ये जो श्लोक 39 to 44 में हाँ, इन ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ने ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की ही बात की है। बिल्कुल। ओके। और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ही नहीं, कुंभक की भी बात की गई है। इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन थ्रू द अदर नॉस्ट्रल, इनहेलेशन फ्रॉम द अदर नॉस्ट्रल, रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन फ्रॉम द फर्स्ट नॉस्ट्रल। तो कुंभक है। हाँ हाँ हाँ। तो क्यों? तो हम प्रतिभा भी बात किए थे। हाँ, तो जैसे अपन ने कहा था कि जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वेयर इट इज प्रैक्टिस्ड, वो एक क्रिया, शुद्धि क्रिया भी हो सकती है और वो एक कुंभक प्राणायाम भी हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है अभी इन श्लोक के अंदर गिरण मुनि ने ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को नाड़ी शुद्धि के रूप में ट्रीट किया है। एग्जैक्टली। अब देखो, जब हम सहित कुंभक पढ़ेंगे ना सुनील भाई, वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि ये तो वही प्रोसीजर है जो पहले एक्सप्लेन किया नाड़ी शुद्धि में, लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि ये सहित कुंभक है, यानी अनुलोम विलोम का वर्णन, वहां पे नाम आता है अनुलोम विलोम, वो नाम आते हुए हमारे सामने
बात क्लियर हो जाती है। तो देखो किस तरह से, हाँ हाँ बोलिए। ये जो अक्षर हैं, लम वम रम यम हम, तो इनको साइलेंटली ही उच्चारण करना माइंड के अंदर। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपकी ब्रीदिंग तो रिलीज हो जाएगी। लेकिन जो जितना मेरी कम समझ है, पर जितनी है, जो साउंड है दैट इज सपोजिटली में योग शास्त्रों में, तो साउंड इज अ वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड, है ना। तो यहाँ ऑब्वियसली प्राणायाम करते हुए, पर जैसे आपने सही कहा कि भाई साउंड का तो यूज नहीं कर सकते, तो विदाउट द यूज ऑफ द साउंड आल्सो क्या ये इफेक्टिव रह पाते हैं जस्ट मेंटल रिपीटेशन से? हाँ, हम हमें तो यही कहा गया है ना कि एक्सटर्नल साउंड से हमको एक्सपीरियंस लेना है इंटरनल साउंड्स का। जी और नाड़ी शुद्धि के बेनिफिट्स में अगर आप देखेंगे तो ये एक बेनिफिट है कि यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू द इंटरनल साउंड्स। हठ प्रदीपिका आप उठा लीजिए और उसके जो बेनिफिट्स बताए गए हैं, जैसे काया कृशता, बॉडी का स्लिमनेस, तो उसके अंदर आगे जो आपको ये भी बताया जाता है कि यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू द इंटरनल साउंड्स। खैर वो तो रिजल्ट है, लेकिन यहां पर मन ही मन भी जब आप उच्चारण करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि उसके वाइब्रेशंस नहीं है। उसके वाइब्रेशंस हैं, बिल्कुल है। हमारे हर एक सोच का वाइब्रेशन है, क्योंकि जब हम बोलते हैं और सुनते हैं तो ये एक्सटर्नल वाइब्रेशंस हमको एहसास दिलाते हैं कि ये साउंड है। लेकिन जब हम किसी के बारे में कोई विचार को लेकर मन में अगर कभी हम उसके ऊपर सिर्फ विचार ही करते हैं, मुख से कुछ बोलते नहीं है, आवाज नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि जो विचार हैं उसके भी वाइब्रेशंस हैं। इट इज देयर। Without vibrations, there is no, even a minute thinking or discrimination will not happen without vibrations. Vibrations are part and parcel of every kind of action throughout the body, whether it is with the external body or whether it is the antahkarana, आपका internal body. So in a way, this silent chanting is on one side there is voice, उच्चारण, and the other side it is thought. So ये somewhere sits in between the two. हाँ, let me tell you one thing clear. We are not chanting it vocally. आपकी आवाज कट हो रही थी, तो मैं एक क्लैरिटी दे देता हूं कि यू आर नॉट चैंटिंग द मंत्र वोकली ना, यू आर डूइंग इट मेंटली ओनली। तो बीच का हो या आगे पीछे का हो, दैट हाउ यू अंडरस्टैंड। बट वन थिंग इज क्लियर कि जब आप सांस ले रहे हैं तो अगर आप मुंह से उच्चारण करेंगे तो सांस लेने में और छोड़ने में कुछ फर्क नहीं रहेगा। सांस को अंदर रोका है, मुंह से उच्चारण करेंगे तो रोक नहीं सकेंगे। सांस को छोड़ रहे हैं और उच्चारण करेंगे तो नहीं। तो मौखिक उच्चारण नहीं है, लेकिन मेंटल रेपिटेशंस आर देयर। ओके, या लेट अस गो अहेड एंड सी। सर सॉरी सॉरी हाँ सर, हाँ, यस वन यस मोर। यस। हम जिसको अभी मुझे समझ में ये आ रहा है हम्म, कि हम जिसको प्राणायाम कहते थे उसको यहाँ नाड़ी शुद्धि कहा गया है। नहीं नहीं, हम जिसको प्राणायाम कहते थे वो प्राणायाम ही है। देखो अभी आगे आ रहा है नाड़ी नहीं, शुद्धि। लेकिन ये जो हाँ है हाँ 1:4:2, ये जो हम पूरक कुंभक रेचक का रेशियो समझते थे, वो तो प्राणायाम का था ना, तो यहाँ हाँ, पर बिल्कुल वो प्राणायाम नाड़ी का था। शुद्धि का बताया है। अब एक बात बोलता हूं मैं आपको, इसमें बताया गया है ये, लेकिन एक टीचर क्या करता है, वो देखता है, अच्छा तो तुम अभी नए नए स्टूडेंट हो, एक काम करो, खाली पूरक रेचक करो, इक्वल रखो, 1:1 रखो। करेक्ट करेक्ट। और फिर वो 1:1 रखते रखते उसको बोलता है कि धीरे धीरे आप रेचक को डबल करो, 1:2 कर दो। तो पहले 4 और 4 हो रहा था, अब बोलता है कि 4 और 8 करो। भले 8 नहीं होता है तो बोलता है कि 6 करो, और 6 से 8 की तरफ आओ। अब जब वो देखता है 4 और 8 हो रहा है तो कहता है कि 6 और 12 करने की कोशिश करो। देखो इतना होता है कि नहीं। जब वो देखता है कि 6 और 12 करने जा तो रहा है, लेकिन एक्सलेशन सिर्फ 10 होता है। इनहेलेशन तो 6 किया, लेकिन एक्सलेशन सिर्फ 10 होता है।
तो वो कहता है, गुरु क्या कहता है अपने शिष्य से, अब एक काम करो, पूरक को 5 कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक्सेलेरेशन 10 ही हो रहा है। तो हमारा पूरक जो है एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करता है, और इसी तरह से वो धीरे से कुंभक इंट्रोड्यूस कर देता है। अब बोलता है कि तुम एक काम करो, सहज कुंभक करो। सहज कुंभक क्या है? इनहेल किया तो सांस को अंदर रोक दिया, क्या एबिलिटी है? अब ये देखो कि रेचक बराबर उतना हो रहा है, डबल टू दैट ऑफ इनहेलेशन। तो वो बोलता है कि अब इसको 1:1:2 रखो, फिर उसको 1:2:2 बनाओ, फिर उसको 1:3:2 बनाओ, या 3.5 बनाओ, और फिर अल्टीमेटली वो 1:4:2 में आता है। जब 1:4:2 में भी आ गया, तो वो खाली ये एहसास कराता है कि 4, 16 और 8, अब इसको करो 6, 32 और 12। फिर वो कहता है कि इसको 8, वो 6 का जो है 32 नहीं आएगा, इट शुड बी 24। 24 6, 24 एंड 12, और यहां पर 8, 32 और 16। फिर वो धीरे धीरे हमको बताता है कि इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए एक रेशियो के साथ कम से कम आपको 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक आपको वो रूटीन चलाते रहना चाहिए। और एक बात बोल रहा हूं आशुतोष सर, ये हठ प्रतिपिका में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 महीने के अभ्यास के बाद में आपकी नाड़ी जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। लेकिन गुरुजन क्या कहते हैं कि वो 3 महीने के अभ्यास से पहले जो तुम अभ्यास करते हो, वो ये 3 महीने के अभ्यास की तैयारी है। आप वो 1:4:2 के लेवल में आकर उतना लंबा रेशियो रखते हुए अब तुमको 3 महीना करना है, तब कहीं जाके नाड़ी शुद्धि होती है। और फिर नाड़ी शुद्धि हो जाने के बाद उसी ब्रीदिंग पैटर्न से हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। अब आप बोलेंगे कि नाड़ी शुद्धि में और प्राणायाम में फिर फर्क क्या है? यहां पर भी हम पूरक कुंभक रेचक कर रहे हैं, और यहां पर भी पूरक कुंभक रेचक कर रहे हैं। तो कुंभक जो दूसरे जो प्राणायाम है, वो दूसरे प्राणायाम के अंदर अलग अलग वैरायटीज दी गई है। जो तुमने नाड़ी शुद्धि में किया उसके अंदर अल्टरनेट नॉस्ट्रिल था, जबकि दूसरे जो प्राणायाम है उसके अंदर थोड़ी सी वैरायटीज बता दी गई। एक तो अभी यहां पर जो है ना सहित कुंभक जो है उसको अनुलोम विलोम कह दिया गया, और फिर सूर्य भेदन एक वैरायटी, उज्जयी दूसरी वैरायटी, सितकारी शीतली या यहां पर शीतली है सिर्फ, वो चौथी वैरायटी। ऐसे करके अलग अलग वैरायटी बता दी। तो है तो सब प्राणायाम ही, लेकिन वो बाकी के वैरायटी वाले प्राणायाम करने से पहले आपका नाड़ी शुद्धि होना जरूरी है, और उसके लिए आप ये करो। जैसे कि एक मैराथन रनर या फिर एक स्प्रिंट रनर, दोनों को रनिंग करना है, लेकिन जब वो कोच के पास जाते हैं तो वो बोलता है पहले अपने जॉइंट लूज करो, पहले धड़ से चलना तो सीखो, see to it that your heels and then feet are properly placed when you're walking, directly toes जमीन पर मत रखो, that is not the way to walk। जब वो ऐसे बोलता है तो बोलता है अरे वॉक तो वॉक होता है ना, तुम ऐसा चलो या वैसा चलो। वो बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बाबा, you have to walk in a proper way so that you can run in a proper way, otherwise before learning walking or running you will spoil your health of the legs, your ankles and the knees will not be in a state to support you। So this is the coach who is coaching the future runner by just making him to learn how to walk rightly। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब हम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं, it is just like teaching you to how to breathe properly in simple प्राणायाम। आप ये बात को पकड़कर भी आगे चल सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। या बोलिए। अनुलोम विलोम एक प्रतिलोम भी कुछ होता है ना? नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। ये गुरुजी नायंगार जी की किताब में उन्होंने हाँ। टाइटल अच्छा, देख अनुलोम विलोम प्रतिलोम। तो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एक बार, एंड हैव टू अंडरस्टैंड इट। आई हैव नेवर कम अक्रॉस दैट, दिस वर्ड टर्मिनोलॉजी हैज नेवर कम इनटू एनी अदर टेक्स्ट, क्योंकि मैंने 8 से 10 टेक्स्ट तो मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन किसी भी टेक्स्ट में वो टर्मिनोलॉजी नहीं आया है। आई एग्री, ही माइट हैव यूज्ड समथिंग, क्या कहा उन्होंने, प्रतिलोम। ओके ओके, तो मेरे पास भी है लाइट ऑफ प्राणायाम। तो तब तक आप रेफर करके फिर अपन बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल, आई विल जस्ट सी टू इट एंड ट्राई टू कम बैक टू इट। अब देखो, ये 46 श्लोक के अंदर हमें अष्टकुंभक का वर्णन मिलता है। सहितः सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्टकुंभकाः। These are the 8 kumbhakas. What are they? Sahita, Surya Bheda, Ujjayi, Sheetali, Vastrika, Brahmari, Murcha and केवली। हमने हठ प्रतिपिका में पढ़ा था, शुरुआत सूर्य भेदन से हुई और तीसरा प्राणायाम था सितकारी। यहां पर सितकारी का वर्णन नहीं है और यहां पर शुरुआत हो रही है सहित से, और शीतली के साथ साथ आगे बढ़ते हुए लास्ट में प्लाविनी की जगह पर केवली लिखा हुआ है। अगर हम हठ प्रतिपिका देखेंगे तो हठ प्रतिपिका में आपको प्लाविनी दिखेगा अष्टकुंभक में, और सहित और केवली का वर्णन हठ प्रतिपिका में अलग से दिया गया है, जहां पर ऐसे लिखा जाता है कि सहित प्राणायाम का अभ्यास आपको केवली तक ले जाएगा, और जब तक आपको केवली का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक आपको सहित का अभ्यास करते रहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 8 वैरायटीज हमारे सामने रख दी गई हैं, ये सारी की सारी सहित ही हैं, और ये 8 वैरायटीज का अभ्यास करते हुए कौन सी वैरायटी हमारे साथ में क्लिक हो जाती है, जिसके बदौलत जो है हम केवल तक पहुंच जाते हैं। और जहां केवल का अंडरस्टैंडिंग आ गया तो हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, ना हमारी सांसें चलती हैं, ना शरीर के अंदर कोई हलचल होती है, ना मन या चित्त के अंदर किसी प्रकार की हलचल होती है। दैट इज वेयर यू बिकम स्टिल एंड स्टेबलाइज्ड। तो अब देखो, घेरंड संहिता इज अ टेक्स्ट विच हैज कम almost 300 years later than that of the हठ प्रतिपिका। हठ प्रतिपिका की जो हिस्ट्री है वो 14th सेंचुरी की है, और ये जो हिस्ट्री है ये 17th सेंचुरी की है। तो दोनों में लगभग 250 से 300 साल का फर्क है। तो कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट ऐसे हुए कि ये चेंज आए हुए होंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घेरंड संहिता लिखते समय या ऑथर ने या फिर घेरंड मुनि ने सिखाते समय, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि ऑथर कौन है, वेदर इट इज घेरंड और वेदर इट इज चंड और समवन एल्स। देयर इज नो ऑथर क्लेमिंग दैट आई हैव रिटन घेरंड संहिता। बट घेरंड मुनि का जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने हठ प्रतिपिका नहीं पढ़ी, उन्होंने पढ़ी है, क्योंकि कई श्लोक जो हैं हठ प्रतिपिका से उठाए हुए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा कॉमन सोर्स है जहां से हठ प्रतिपिका ने भी वो श्लोक लिए हो और घेरंड संहिता ने भी लिए हो। दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। सो ये भी एक हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, घेरंड मुनि अपने प्रांत में रहते हुए ये ग्रंथ को लिख दिए, हठ प्रतिपिका वाले स्वात्माराम जी वो अपने प्रांत में रहते हुए अपना टेक्स्ट लिखा। लेकिन आज अगर ये दोनों टेक्स्ट हमारे सामने हैं तो ये सारे आइडियोलॉजीज की तरफ हमारे मन को केंद्रित करते हुए ये दोनों के फर्क को समझकर आज हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है ये भी सोचना बहुत जरूरी है। और इसीलिए देखो, आज के जो मॉडर्न टीचर्स हैं वो प्राणायाम के अंदर कई प्रकार के बदलाव लाकर जो है सामने रखने की कोशिश करते हैं। खैर, मैं उसके ज्यादा फेवर में नहीं हूं। मुझे ऐसे लगता है कि जो ऑलरेडी डिफाइंड टेक्निक हमारे टेक्स्ट बुक में है उसमें हम ज्यादा फेरबदल करें क्यों, उसी को करके देखें। अगर वो हमको सूट होता है, why unnecessarily bring new techniques into it? Ultimately, you are doing pranayam to reach within. You are doing pranayam to know the reality, to know the truth. Why we are going externally and trying to, do research and prepare some more techniques? तो हम इंटरनल कहां हो रहे हैं, हम तो एक्सटर्नली हो रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एंड एम्फोसाइज दैट ये मेरा प्राणायाम है। और आप देख लो, आज के जितने बड़े बड़े टीचर हैं सब अपना अपना प्राणायाम लाकर सामने खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उसको पेटेंट बनवा दिया है उन्होंने, और पेटेंट बनवा के बोलते हैं पहले पैसा भरो, उसके बाद में प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अगर पैसा नहीं भरते हो
तो डोंट प्रैक्टिस, यू विल बी सूड फॉर इट। अब वो अपना कर्म भोगेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। जस्ट वांट टू टेल यू, ये सांसें किसकी, ये आत्मा किसकी, ये पूरा प्रकृति किसका, और ये प्रकृति के द्वारा आप जो चेंजेस ला रहे हैं वो किसका, और वो मैसेज क्या है, किसको पाने का और किससे कनेक्ट होने का। और हम इसके अंदर अपना वो जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे बम्बैया भाषा में बोलते हैं, अपना अपना उल्लू सीधा कर ले रहे हैं। तो समवेयर this clarity has to be brought in, and we need to be very much clear that traditional knowledge is the guiding factor, and when I am practicing, I am going through this experiences, if I bring such kind of change, I do experience some changes, but at the same time, will the same change occur to other people also? If not, let me stick to traditional only. तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखकर जो है ट्रेडिशनल अप्रोच को अगर हम अपनाते हैं, तो वी डू लॉट ऑफ जस्टिस फॉर लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, सर, एक वेरिएबल जो शायद जैसे अपन ने बात की 14th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की, हाँ एक वेरिएबल है एम्बिएंट एयर क्वालिटी। हाँ बिल्कुल। तो उसका शायद स्वात्माराम जी के और धीरेन्द्र मुनि के समय में शायद वो इतना कंसर्न रहा हो कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी may not have been good enough. नो नो, स्टिल या द maybe कंसर्न that वाज may also देयर। be so, क्योंकि जंगल, हाँ, हाँ तो उसका कहीं फैक्टर किया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है ना, हमने पढ़ा ना, इसमें हमको क्लियरली बताया गया है कि तुम ज्यादा दूर भी मत जाओ, जंगलों में भी मत जाओ, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा। और शहर में रहकर भी मत करो, क्योंकि यहां का वातावरण आपके लिए उपयुक्त नहीं है। अब उस समय पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन बाकी के दूसरे पॉल्यूशंस तो होंगे ना, नॉइस पॉल्यूशन होगा, या फिर जहां पर गर्दी ज्यादा होती है, तो मे बी द chaotic अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पॉल्यूशन। तो वो उन्होंने कहा है कि यू गो टू अ प्लेस विच इज फार ऑफ बट नॉट टू फार, यू गो टू अ सॉलिटरी प्लेस बट विच इज सेफ। हमको ये वो उन्होंने इसी चैप्टर में बताया कि तुम जंगल में भी चले जाओगे प्रैक्टिस करने के लिए, नथिंग रॉन्ग, बट टेक नोट दैट यू आर नॉट गेटिंग हार्म्ड ओवर देयर बाय द वाइल्ड एनिमल्स, तो यू शुड बी प्रोटेक्टेड। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मठ कैसे होना चाहिए, उसको कैसे बनाना चाहिए, उसमें बैठकर आपको अभ्यास कैसे करना चाहिए। और अभी हमको कहा उन्होंने, कुशाग्रास मृगा जिने व्याघ्र जिने कम बले, इतना अच्छा कुशन वाला सीट बनाकर उस पर बैठो और फिर तुम प्राणायाम की शुरुआत करो, ताकि हार्ड सरफेस आपको ट्रबल ना करे। ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि गर्म जो जमीन की जो अपनी मैग्नेटिक एजेंसी है, वो कहीं आपके शरीर के मैग्नेटिक एबिलिटी से कनेक्ट होकर आपको पुल ना करे। तो प्रिपेयर ए इंसुलेशन इन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ एंड सिट ऑन इट एंड देन गो हेड विद द प्रैक्टिस। ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमको प्री रिक्विजिट में दी गई है। ये बात सही है कि भाई उस टाइम पे ये जो हमने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो लाया हुआ है वो नहीं था, बट इट इज नॉट दैट देयर वाज नॉट अदर पॉल्यूशन। उस जमाने में अगर कभी गाड़ियां धुआं नहीं छोड़ती थी, तो घोड़े दौड़ते थे, और घोड़े के जो पैरों की जो दौड़ होती थी, वो कई प्रकार के धूल को ऊपर उछाल देती। तो जहां पर राह होती है, वहां से कहा जाता है कि थोड़ा सा दूर अपना स्थान रखो, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन होता है। तो दिस मतलब रोड जहां पर होता है, वहां से थोड़ा अपना ठिकाना लंबा होना चाहिए। तो ये चीजें इसमें भी है, यहां तक कि हठ प्रतिपिका में भी है, और इसमें भी बताई गई। हमने इसी 5th चैप्टर में स्टार्टिंग के श्लोकों में ये पढ़ा कि भाई तुम्हारी जगह कहां होनी चाहिए अभ्यास करने के लिए। So this is there. Now we have to understand as per the current situation कि where we are comfortable and what is the apt way। वो उनके लिए एप्लीकेबल था, हमारे लिए क्या एप्लीकेबल होगा, ये हमको भी तो बुद्धि दी हुई है ना भाई ईश्वर ने।
हम वो यूज करके हम उसका अंदाजा लगाकर हम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर दैट प्राणायाम हैज टू बी प्रैक्टिस्ड इन सच अ एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस एक्चुअली। तो ये हमारी चर्चा जो जी मेरी हुई थी, मेरे को हाँ याद है हाँ कि देयर वाज अ थिंग कि भाई क्या हम लॉन में पेड़ के नीचे प्राणायाम करना ज्यादा बेहतर है या कमरे के अंदर करना ज्यादा बेहतर है। तो इन द लाइट ऑफ, चलो वो तो पहली टेक्स्ट थी, इन द लाइट ऑफ व्हाट किरण मुनि हैज सेड, वुड देयर बी एनी डिफरेंस और वुड वी स्टिल से कि नहीं, भाई अंदर करना ज्यादा बेहतर है? उन्होंने चार दीवारी के अंदर ही करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा ना मठ के अंदर बैठ के करो। तो ऐसा नहीं है कि मठ में हवा आने जाने की जगह नहीं, चार दीवारी पूरी पैक्ड है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। चार दीवारी के अंदर करना चाहिए जरूरी। अब इसके पीछे भी राज है। खुली हवा में बड़े बड़े टीचर्स भी हमको बोलते हैं कि ठीक है, कभी कभार तुम्हारा मन किया तुमने कर लिया, वो अच्छी बात, लेकिन खुली हवा में प्राणायाम का अभ्यास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सी, द इंटेंसिटी ऑफ द एयर विच इज फ्लोइंग and the intensity of the air that is which is supposed to be inhaled and expelled is always going to contradict each other. But what happens when you are in the four walls of your matha? The internal air intensity is exactly according to the way you are inhaling and exhaling, and you will feel comfortable. हम चलते फिरते भी हवा में अगर निकलते हैं तो हमको थोड़ा सा सांस लेने में और छोड़ने में जो है ना, ऐसा लगता है कि हवा कितनी बह रही है, तो हम नाक पे रुमाल रख लेते हैं। पता नहीं क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं या वो एयर की स्पीड को ही कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है कि हम प्राणायाम का अभ्यास जो है चार दीवारी के अंदर ही करें। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने चार दीवारी की जो व्याख्या की है वो कहा कि कोई भी खिड़की विड़की नहीं होनी चाहिए, खाली एक छोटा सा दरवाजा हो काफी है, और वो पूरी तरह से गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। जमीन जो है, दीवारें जो हैं, वो गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए। वहां पर कोई कीटाणु वगैरह नहीं होने चाहिए, जंतु नहीं होने चाहिए। इन सब से वो जगह जो है साफ होनी चाहिए, ताकि आपके प्रैक्टिस के अंदर कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो और आपका अभ्यास बना रहे। इट इज लाइक दैट। और ये सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं, it is for the student to become better focused, but when the student becomes an expert, उसका शरीर ही ऐसा हो जाता है कि सारा मॉड्यूलेशंस उसके शरीर में होने लगता है। मतलब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अगर एक बंदा प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है और पूरी तरह से प्राणायाम पे फोकस्ड रहकर वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई कीटाणु आए और उसको काटे और खून निकाले, उसका शरीर की तरफ से वो फोकस कभी उसका हटेगा नहीं जो उसका प्राणायाम के ऊपर है। ये बात और है कि प्राणायाम करके बाहर आने के बाद में उसको रियलाइज होगा कि कहीं पर किसी कीड़े ने काट लिया और खून आ रहा है, वो उसका इलाज बाद में कर लेगा। बट एट द सेम टाइम, एट द टाइम ऑफ द प्रैक्टिस, नाउ सिंस ही हैज गेन्ड दैट एक्सपर्टीज ना, इसलिए तो हमको कहते हैं कि एक बात बताई वहां पे भोजन से रिलेटेड कि अभ्यास काले प्रथमम क्षीर राज्य भोजनम। भाई, जब तुम नया नया प्रैक्टिस करना सीखते हो तो दूध वाले प्रोडक्ट्स का सेवन ज्यादा किया करो। और फिर आगे क्या कहते हैं? अभ्यास दृढ़ीभूते न ताद्रुम नियम आग्रह। एक बार तुमने अपने एक्सपर्टीज को डेवलप कर दिया, फिर वो ऐसा कोई रेगुलेशन रखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप वो जो रेस्ट्रिक्शन आपने शुरुआत में सारे अपनाए, वो आगे आपको ऐसा लगता है कि मुझे रखने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप वो पीपल के झाड़ के नीचे बैठो आराम से और करो, बिकॉज यू हैव गेन्ड द इंटरनल एबिलिटी टू कंट्रोल द थिंग्स इन सच अ वे that the external things are getting controlled because of your internal ability. So what is the point of catering for the external problems? So this is the beauty of yogic practices. और also क्या height, does that play a role in that? Yes, it does play a role. या below the ground किया हुआ या
बिल्डिंग के 10th फ्लोर में किया हुआ, इनमें प्राणायाम के उसमें फर्क रहेगा क्या? हमें तो उन्होंने कहा शीला अग्नि जल वर्जिते, यानी ये तीनों चीजों से जो है दूर रहना चाहिए, ना पानी आसपास हो। उन्होंने कहा धनुहु प्रमाण पर्यंतम, ना धनुष, धनुहु, एक धनु जो है 4 हस्त का होता है, तो 4 हाथ यानी लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी तक जो है आप जहां पर बैठकर कर रहे हैं वो इन सब चीजों से दूर होना चाहिए। अब ये बात और है कि आपकी मजबूरी है कि आप गुफा में जमीन के नीचे ही जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप करो, मना नहीं किया। आप पानी के बाजू में ही रहकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी मजबूरी है क्योंकि आपका स्थान ही वैसा है। तो यू डेवलप ए काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डू द प्रैक्टिस विद दैट एटमॉस्फेयर अराउंड यू एंड गेन एक्सपर्टीज इन दैट। लेकिन एक क्लैरिटी हमको दे दी गई कि आप जो है सही तरीके से अगर इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो तो योर प्लेस शुड बी एटलीस्ट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम दिस 3 थिंग्स, दैट इज अग्नि, जल एंड द अर्थ। तो अर्थ से भी दूर यानी शीला, स्टोन्स वगैरह सब, या पहाड़ियों से अलग होकर थोड़ा सा ऐसा स्थान। वो हम लास्ट टाइम पे वो यूपी वाले बाबा की बात कर रहे थे ना, जो मैंने आप लोगों के साथ में वो रिकॉर्डिंग भी शेयर किया, उसमें वो बाबा खुद बोलते हैं कि ये हमारे हठ प्रतिपिका में लिखा हुआ है कि आपका जो है मचान ऐसे बना हुआ होना चाहिए कि आप ये सब चीजों से दूर रहो और अपना अभ्यास करते रहो। और वो बाहर आकर किसी को अपना शरीर वगैरह प्रदर्शन भी नहीं करते, वो उसी में रहकर वो खाली अपना मुंडी बाहर निकाल कर जो है वो रिपोर्टर से बात कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। तो सी, ही इज एन एग्जाम्पल फॉर what is to be followed, but he got that kind of opportunity to make his built up in that way. दूसरे योगियों को शायद वैसा नहीं मिला होगा, कुछ और मिला होगा, कुछ और तरीका समझा होगा उन्होंने, तो उस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करके उन्होंने मैनेज किया। See, there is no excuse from not doing it, but as far as following the rules and getting it done is important. I was only asking that if one has a choice, say let's say between these 3 places, basement, ground floor and 10th floor, 20th floor, whatever, if one has a choice, then See, which is preferred? The more higher you go, the oxygen deficiency will happen, so better avoid it, है ना। तो अगर कभी आप कहते हैं कि मैं 10th फ्लोर पे रह के करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप यूज्ड टू हैं इट्स ऑल राइट, बट व्हेन यू सी at the sea level, going to the higher level, the oxygen deficit is there, but at the same time the one person who is practicing pranayam and trained his ability, he will be able to do in that 10th floor also. So first see where you are comfortable, your comfort level matters. तो वो जगह ऐसी ढूंढो जहां पर तुम कंफर्टेबल हो और फिर अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके अपने शरीर को इस काबिल बना लो, एक्सपर्ट बना लो कि आगे जाकर आप ऊपर हो या नीचे बेसमेंट में हो या कहीं भी हो, आपके प्रैक्टिस से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड गेट अडेप्टेड टू दैट सिचुएशन एंड गेट अलोंग विद इट, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हमारा अष्टकुंभक हम अगले वीक के लिए रखते हैं। सो प्लीज सिट इरेक्ट। With the closure of your eyes, observing the silence within. Slowly inhale. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
क्षणमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Yes, gently open your eyes. Thank you, friends. Thank you very much. Yeah, we can start with our further understanding of the discussion. So may I request you all to take over? So last week I missed the morning yoga 3 times because previous night I had some late session, and therefore I felt very unhappy. And the first opportunity, I decided that I will resume. And once I resumed, then I felt that I will resume. Once I did that, I felt Sunil bhai, please. Yes, he has muted. Yes, sir. Ashutosh sir, please continue. You are done? so. Then I said I have to organize my routine in such a way that I don't miss the morning session. Now that becomes a very important And thing. as we were discussing Nadi Shuddhi, I think Nadi Shuddhi is helping, and I'm Yes. liking it. Yes. See, this is a balancing pranayam. This is in our, Yeah. I think, Yoga Institute, we call it as equal breathing. So Right. you are inhaling the same counts and exhaling the same counts. And this literally helps you to at least get disconnected with whatever way you are in this worldliness and brings you back to your internal equilibrium and makes you Right. to heal yourself and continue ahead. Right. So So that that is has really been helpful. a good experience. Yeah, great. Yeah, nice. Practices are on, but during the day, I'm trying to be more and more mindful. That mindfulness, to maintain that mindfulness, is being practiced. Like Sir said, that things should not get missed. So that time management, I try and do. If for some reason something has, I'm late for something, then I leave that thing and move on to the next routine. अभी कभी ऐसे हो सकता है कि सुबह को one gets up late by a few minutes, but then the walk will get missed if I spend too much time on asana. So I leave that one thing and go on to the next routine, which is fixed. So at least everything is not missed. Yeah. Khana late ho gaya, ye late ho gaya, because it has a domino effect on all the other routines. So all right, then leave this, because then there is free time also during the day. So if I have missed a certain thing, then I keep that for the free time in the day. Right. So that way, most of the things are done. If every day a certain time is kept for reading. So if that time is lost, then at least I can cover it up in the next day, or then I have to miss it. So I can't let other things get missed because of one thing which I have missed. Exactly. So that is the thinking, and that is the reflection which has happened, and that's what I'm doing. Now, that is true. And that thing comes to me also, because I have also understood कि अगर कोई ऐसा सडनली इमरजेंसी कोई काम आ गया और उस समय हम एंगेज्ड हैं and we cannot miss that, Right. so it is better to cancel that program and get along with that emergency, deal with Right. it, and get ahead with the next activity at the proper time.
So बराबर, that is great. Yeah, that is nice. rigidity नहीं रखनी है. Right. Yeah. Chalo, great. Thank you. Sunil bhai, you have something to share? Yes. So this week, मैंने, आपको याद है 2 हफ्ते पहले हमने वो, मेरा थोड़ा बैक में वो हल्का सा वो था, तो आपने कुछ एक्सरसाइज बताई थी, तो कुछ दिन मैंने वो की, फिर मैंने सोचा कि इसको पूरा रेस्ट दे देते हैं, और मैं केवल मसाज, पिछले हफ्ते मैं केवल मसाज किया, और ना सूर्य नमस्कार किया, ना आसन किए, तो वो बैक काफी ठीक है अब। तो अब मैं, यही विचार है कि कमिंग वीक में वापस जो है सूर्य नमस्कार, बट नॉट दी अपने अग्निसार एंड कपाल, और थोड़ी वार्मथ होने लग गई है, तो आई विल अवॉइड दैट, आई थिंक, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बट सूर्य नमस्कार एंड आसन इज व्हाट आई विल नाउ कमेंस इन द कमिंग वीक. Okay. Go And slow. massage will continue. Yeah. जी. Okay. Right. So anything else? Okay, then let us call it a Right. day. Yeah. Right. Thank you. साबिर भाई आप नहीं शेयर करेंगे? हाँ, for me, it is a great fight. Actually, the way I am organized for throughout the day, कि how my sessions are placed and how my routine is going on. तो कई बार मुझे reduce करने का तो मैं कहता हूँ, लेकिन अभी ऐसा हो गया है ना कि I have placed myself in such a position कि मैं जिसको avoid नहीं करना चाहता हूँ, avoid करना चाहता हूँ, उसको भी नहीं कर पाता. So saying no is becoming difficult, but at the same time now I am gathering that courage to say no. People are getting disturbed. वो बोलते हैं अरे सर आप ऐसे कैसे ना बोल सकते हैं. अब जैसे कि बीच में IYA का मीटिंग था, and I simply said कि sorry I cannot attend. अरे you are a joint secretary, how come you can say no? You have to come. What is that you are going through, and what is the problem that you are not going to attend? No, I cannot, because there are other things planned and I just don't want to miss them or sacrifice them. और पता नहीं उस टाइम पे क्या करेज आ गया कि मैंने उनके मुंह पे उनको बोल दिया कि तुम्हारे IYA का जो मीटिंग होता है वो खाली टाइम पास होता है, उधर आके मेरा टाइम पास करने से अच्छा है कि आई यूटिलाइज द टाइम इन सम कॉन्क्रीट एंड बेटर वे. दे ऑल फेल्ट अरे यार कम से कम हमारे मुंह पे तो मत बोलो, ऐसे बोल रहे थे वो. तो आई सेड देखो अब वो सच्चाई निकल गई मेरे मुंह से, प्लीज अंडरस्टैंड, बट दिस इज माय स्टेट. वो वहां से ले लेंगे. So somewhere I am developing that kind of courage at least to say no now, and really I appreciate myself कि अच्छा काम कर रहे हो. तो वो पहले नहीं होता था, जो आया उसको हाँ नंदी बैल के जैसे मुंडी हिला दी और लग गए काम पे. तो now at least that is not happening, that changes I am seeing. So this is one change I can say. कैसे चल रहा है आपका रिसर्च? अभी नेक्स्ट वीक में DRC है सर, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के सामने बैठकर जो है रिसर्च प्रपोजल एक्सप्लेन करना है. तो until last 2 weeks I was busy making my research proposal more and more concrete and better, and still my guide says कि your research proposal is not proper, you have to do much more corrections in that. तो कभी कभी जब वो ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं उनको एक बार बोल दिया सर ऐसा बार बार बोलेंगे ना तो मैं छोड़ दूंगा PhD, मुझे नहीं करनी. तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू जस्ट डू सम फ्यू करेक्शंस, डोंट लीव PhD बट एट द सेम टाइम डू दिस. There are certain things which I am enjoying, but there are certain things which are really disturbing and sometimes make us understand कि why this is essential, क्यों करना है, ऐसा भी लगता है. But ठीक है, अब वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो कुफल में या किस में जो सर डाल दिया है तो फिर वो ऊपर से कूटे जाने का क्या डरना, ऐसा हिसाब किताब है अभी. तो वो एक कहावत है, I don't remember the words, right words there. So this is like that. But ठीक है, going on, but the same thing which I was telling last 2 weeks also, before that also, कि this phase is a transformation phase where from one type of lifestyle I am trying to change to the other, and I am facing difficulty, but this will settle down. I am assured of that. That is there. So building upon Sabir bhai what you said previously,
हाँ वो करेज एंड सेइंग नो वाली बात थी. तो हाँ आई एम ऑल्सो मूविंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ सिमिलर जर्नी हाँ in that कि it's not a ना कहने के बजाय I am trying to exclude many जो disturbing energies होती थी पहले, which we anyway under garb of कि भाई दुनिया में रहना है तो सबको accommodate करना है वगैरह, वो करते करते I realize कि भाई शायद इतना ज्यादा accommodate करने की जरूरत नहीं होगी. बिल्कुल नहीं So है. this bit I am month on month I am finding कि धीरे धीरे करके I am excluding the bad energies, and I think it will contribute to the regularity of the practice. It will. मैं लास्ट वीक का ही एग्जांपल देता हूं. My director madam suddenly one day before asked me that Sabir, you have to be a invigilator tomorrow. I said I am not free. So she is saying, how can you say that you are not free? I told her, oh madam, when the timetable is not there and I am not supposed to do that work at that time, I have given myself an opportunity to engage myself somewhere else. तो बोले नहीं नहीं, ये तो अपने डिपार्टमेंट का काम है, बच्चों के एग्जाम से आप ना नहीं बोल सकते. तो मैं बोला मैं ना बोल सकता हूँ, आप भले मुझे बोलो रिजाइन करने के लिए, मैं वो भी कर सकता हूँ. बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू वन थिंग, कि मैं पूछता हूँ, अगर मेरा दूसरा काम एडजस्ट हो जाता है तो आई विल मैनेज. अगर वो एडजस्ट नहीं होता है तो आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू आई एम नॉट अवेलेबल.